ہے کہ بیت المقدس سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ مقدس مطلب مجھے نہیں معلوم. بیت المقدس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ ادھر سر بیت المقدس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ بیت المقدر سے بیت المقدس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ میں تو ہوتی ہوں یار, میں پڑھا لکھا نہیں اتنا. بیت المقدس ہے. مقدس سے ہمارا کیا رشتہ آئی ڈونٹ نو سر. ہے؟ بیت المقدس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ وہ سر ہم نہیں بول سکتے یار, معذرت. حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے, یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن یہ امریکہ کے پٹھوں ہیں. یہ امریکہ کے کہنے کے اوپر کچھ نہیں کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے نا کہ اگر ہم نے کوئی ایکشن لیا, کوئی حرکت کی, تو ہمارے جو ڈالر آ رہے ہیں نا وہاں سے وہ بند ہو جائیں گے. السلام علیکم, میرا نام محمد نور اللہ سنا, آپ دیکھ رہے ہیں رائز پاکستانی ٹی وی. آج کا سوال بیت المقدس سے پاکستانیوں کا, لاہوریوں کا کیا رشتہ ہے, جاننے کی کوشش کریں گے. چلیے ہمارے ساتھ. وعلیکم السلام. بھائی جان کیا حال چال ہیں آپ کے؟ شکر ہے مالک کا. ہمیں یہ بتائیں کہ بیت المقدس سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ بیت المقدس سے بیت المقدس مطلب مجھے نہیں معلوم. فلسطین سے. فلسطین ظلم ہو رہے ہیں یہ تو پتہ چل رہا ہے, اپنی فوج بھی گئی ہے ادھر, آگے اللہ بہتر کرے. آپ کو یہ کس نے کہا کہ پاکستان کی فوج گئی ہے؟ گئی ہے, دوست نے بتایا مجھے. آپ کے دوست نے بتایا؟ ہاں میرے دوست نے بتایا. مزید کچھ بتائیں, آپ کے دوست نے آپ کو کیا بتایا؟ بس یہی پتہ چلا ہے ابھی تک, تو مزید پتہ نہیں ہے کچھ بھی. اس کے بارے میں پتہ ہوتا تو آپ کو ضرور بتاتے. تھینک یو جی. بیت المقدس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ ادھر وعلیکم السلام. سر بیت المقدس سے ہمارا کیا رشتہ, ہمارے یہ سوال پوچھ رہے ہیں. بیت المقدس تو ہمارا پہلا کعبہ ہے, ہمارا پہلا اسلام وہاں پہ ہے, اس سے شروع ہے. ہمارا پہلے ہی مذہب ادھر ہے, ہمارا سب, ہم سب ادھر سے مسلمان ہیں, ہم شکر اللہ الحمدللہ. ہم بیت المقدس سے تو ہمارا بہت گہرا رشتہ ہے. مسلمان دہشت گرد کیوں ہے, کیوں ہمارے اوپر یہ لیبل لگ؟ سر جی اس کا تو میں نو آنسر, اس کے پاس تو میرا کوئی آپشن نہیں ہے آپ کو میں بتا دوں. شکریہ آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بیت المقدس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ بیت المقدر سے اس میں کیا رہا دیکھو راست لگورتا ہے. وعلیکم السلام. بیت المقدس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ دیں گے بار بھائی, صحیح بار دیں. السلام علیکم. انکل کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ شوئی ہے. انکل بیت المقدس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ میں تو ہوتی ہوں یار, میں پڑھا لکھا نہیں اتنا. وعلیکم السلام. انکل یہ ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بیت المقدس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ بیت المقدس ہے. میں انپڑھ بندہ, میں پنجابی چ دس. فلسطین نال ساڈا کی رشتہ ہے؟ وہ بھی مسلمان تھے, اسی بھی مسلمان بھرا, اور کی رشتہ ہے. سر بیت المقدس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ آئی ڈونٹ نو سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بیت المقدس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ وہ ہمارا بیت المقدس ہے, وہ ہمارا جو سمجھ لیں کہ پہلا وہ کہہ لیں اس کو, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے گئے تھے, اللہ پاک نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ جا کے وہاں پہ دین کی تبلیغ کریں اور مسلمانوں کے اوپر جو ہدایت ہے وہ ان کی طرف پھیلائیں. تو اس کے علاوہ تھینک یو. السلام علیکم. صاحب سر بیت المقدس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ ہمارا رشتہ نہیں ہوگا تو اور کس کا ہوگا, ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, ہمارا ہی رشتہ. کہ جان قربان کر دیجیے. جی ہاں ضرور, جان قربان, ہماری جان حاضر ہے. ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ وہاں پہ, وہ مشکلات سے گزر رہے ہیں, اور ہمارا حق بنتا ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے لیے جو کر سکتے ہیں ہم کم ہے, جو بھی کر سکتے ہیں کم ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بیت المقدس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ وہ سر ہم نہیں بول سکتے یار, معذرت. سر بیت المقدس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ بیت المقدس سے ہمارا سب سے اہم رشتہ ہے جناب. بیت المقدس سے تو سب سے اچھا رشتہ ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہی کیا. جس بندے کو بیت المقدس سے پیار نہیں ہے اس کا مر جانا بہتر ہے. میں نے یہاں پہ ایک انکل سے پوچھا ہے کہ نا بیت المقدس سے ہمارا کیا رشتہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, تو اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے؟ اس میں پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے, غیرت مند ہونا ضروری ہے سر. جس کے اندر دین مصطفیٰ کی محبت اور پیار ہوگا تو اس کو پڑھے لکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے اندر دین مصطفیٰ اور غیرت ایمانی ہونی چاہیے, سب کو پتہ ہوتا ہے. جزاک اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ بیت المقدس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ ایک انسانیت کا, ایک مسلمان کو ایک بھائی کا رشتہ ہے. یہاں پہ میں نے ایک صاحب سے پوچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, تو اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے؟ نہیں, یہ تو دل کی بات ہے.
सर बैतुल मुकद्दस से हमारा क्या रिश्ता है? बहुत अहम रिश्ता है जी, बहुत अहम रिश्ता है, मगर हम भूले हुए हैं सब कुछ। वो कहते हैं कि किसी चीज़ को इतना फैला दो कि बहुत आम सी महसूस होने लग पाए कि कोई अगर जिंदा है या मुर्दा है वो बिल्कुल अच्छा ठीक है, आज भी कोई खबर आई है ठीक है, ये आपको आम बात लगती है? नहीं, आम बात नहीं है। आम बात हमें चाहिए एक यकचित होकर उनके साथ तावन करना, ये आम बात नहीं है, मगर पता ही नहीं है किसी को कुछ। नाम के मुसलमान हैं बस, और कुछ नहीं, और बड़े अफसोस की बात है। आपका बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बैतुल मुकद्दस से हमारा क्या रिश्ता है? सर मुसलमान है तो हमारा तो रिश्ता बहुत गहरा है जी। आपको लगता है हिजबुल्लाह के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो चैलेंज कर सकती है इसराइल को? हमास तो एक वीक तंजीम है। अल्लाह जज्बा होना चाहिए, करेगा क्यों नहीं करेगा, करेगा, जज्बा है, क्यों नहीं करेगा। मुसलमान कुछ बैठे हुए हैं आराम से, लेकिन नहीं बैठना चाहिए उनको, करना चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए। हम भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जहाँ तक हमारी पहुँच है वहाँ तक उठा रहे हैं अपनी आवाज़, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बैतुल मुकद्दस से हमारा क्या रिश्ता है? यार हमारा किबले अव्वल है वो यार। आपका इस बारे में इमोशन क्या, आपका एक नजरिया क्या है इस बारे में? यार हम लोग तो बेबस हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे ये हुक्मरान थोड़ी सी गैरत का मुजाहरा करें अगर, तो हमारी तो जान भी हाजिर है उनके लिए, उन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, बहनों के लिए। हम रोज़ वो टीवी पे, नेट पे वो सब कुछ देखते हैं, हमारा दिल खून के आंसू होता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। अगर हमारे बस में कुछ हो ना, तो हमारे बच्चे भी हाजिर हैं इनके लिए, बस ये कर सकते हैं हम। और अल्लाह के हज़ूर दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनकी गैब से मदद फरमाए, अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर करे और इसराइल को तबाह बर्बाद निस्बो नबूद करे, ये हमारी दुआ है। वो कहते हैं कि कुर्बे क़यामत के वक़्त एक दरख़्त जो होगा ना, अगर वो बरकत का दरख़्त नहीं होगा, वो भी आवाज़ देगा मुस्लिम मेरे पीछे आओ, यहाँ पे एक यहूदी है इसे मार दो। जनाब ये तो मेरी बात सुनो ना, ये यहाँ पर तो बहैसियत मुसलमान ये हमारे ऊपर जिहाद फर्ज हुआ है, लेकिन मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूँ कि मसला ये है कि हम लोग बेबस हैं। अब कोई ये यानी कि मरीज में थोड़ी हो रहा है, या कोई गुजरे वाला में थोड़ी हो रहा है जो हमने चले जाना है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन ये हुक्मरानों के हाथ में है। ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, ये अमेरिका के कहने के ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको पता है ना कि अगर हमने कोई एक्शन लिया, कोई हरकत की, तो हमारे जो डॉलर आ रहे हैं ना वहाँ से वो बंद हो जाएंगे। ये हकीकत बता रहा हूँ आपको मैं। वो हमारा मौलाना फजलुर रहमान साहब वो गए हैं, वो खाली खाना पूरी करने गए हैं। उनके पास हालांकि पैसा भी है, ताकत भी है, हर चीज़ का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, लेकिन अभी वो गज़ा में गए हैं, वो हमास के वो मुजाहिदीन से मुलाकात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ यानी कि खाना पूरी करने गए हैं, अपनी सियासत को चमकाने के लिए गए हैं। वो कोई यानी कि जिहाद के चक्कर में या इस चक्कर में नहीं गए, वो इसमें भी सियासत चमका रहे हैं वो। तो अल्लाह पाक बस उनकी गैब से मदद करे, हम दुआ कर सकते हैं। हम तो रोज़ रात को टीवी पे, नेट पे जब वो मासूम बच्चों को देखते हैं, खुदा की कसम कि हमें अपने बच्चे सामने नज़र आते हैं। यार ये आज फ़लस्तीन है ना, कल ये पाकिस्तान भी हो सकता है, और ये होना है, एक दिन आना है ये। पहले ईरान था, फिर इराक था, फिर शाम था, फिर अफ़गानिस्तान था, तो आज फ़लस्तीन है, तो ये पाकिस्तान का भी नंबर आना है। अभी थोड़ी सी भी अगर हम मुसलमानों के अंदर गैरत का मुजाहरा करें, हम लोग जागें, तो कोई इक़दाम ऐसा करें कि अमली इक़दाम हो। ये यानी कि रैलियाँ निकालने से, ये अपना एहतजाज करने से, मुजाहरे करने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। वहाँ पे 10,000 मासूम बच्चा शहीद हो चुका है। मासूम बच्चे यार, खुदा की कसम के दिल, ये रोंगटे ना खड़े हो जाते हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोगों का घर बार, कारोबार, बीवी, बच्चे, बहन, भाई, पूरी पूरी नस्ल, पूरा पूरा खानदान तबाह बर्बाद निस्बो नबूद हो चुका है। मलबे थले दबे में, उनकी लाशों, प्यारों की लाशें नहीं मिल रही हैं उनको, यानी कि वहां से हिजरत कर, वो हिजरत नहीं कर सकते यार, वो वहां से निकलने की इजाजत नहीं है उन लोगों को। तो ये बस अल्लाह के खौफ से डरें थोड़ा सा, तो इनको थोड़ी सी गैरत का ये मुजाहरा करें, कोई अमली इक़दाम करें। अक़वाम मुत्तहिदा हमारी जो दुनिया की वो है, वो इस चीज़ पर एक्शन ले। ईरान ने एक्शन लिया, रूस ने लिया, लेकिन वो अमली तौर पे एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। अभी बातों के तौर पे हो रहा है, अमली तौर पे तभी होगा जब तक ये सब ख़त्म हो जाएंगे।
कि अल्लाह की वो गैब से मदद आएगी तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतर करेगा, अल्लाह खैर करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कारी साहब, बैतुल मुक़द्दस से पाकिस्तान का क्या रिश्ता है? या हम लाहौर में खड़े हैं, यहाँ पे लोगों के अंदर वो जज्बा है, या आप समझते हैं कि लोगों के अंदर वो ऑब्जर्वेशन, वो मुशाहिदा है लोगों का? लोगों के अंदर जज्बा है, मगर हमें आगे कुछ नहीं नजर आ रहा। मैं खुद बावजू खड़ा हूँ, मैं अपनी जान देने को कुर्बान हूँ। हमारा पहला बैतुल मुक़द्दस है वो, ठीक है कि नहीं? मगर हमारे हुक्मरान ही कुछ नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे? पैदल तो हम जा नहीं सकते, यहाँ थोड़ा सफ़र हो तो हम जाएं, तो हम मजबूर हैं। मैं तो हर नमाज के बाद दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी क्या भी मदद फरमा दे। ये चीज़ है। कुर्बे क़यामत की एक निशानी ये है कि हर दरख्त भी पुकारेगा कि ए मुस्लिम, मेरे पीछे से एक यहूदी है, इसको मार दो, सिवाय गरकत के दरख्त के। तो यहूदी को मारना तो मतलब कि एक सिंपल बात है, काफिर है, उसको मारना है। जी जी। बात ये है, हमारे लिए हम सब में एक जज्बा है, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, हम आगे देखते ही नहीं कुछ क्या है, ये हमारा जज्बा है। हमें हमारी दुनिया तड़फ रही है, इधर बच्चे छोटे छोटे हमारे अस्पतालों में, वहाँ अस्पतालों में वो कभी भी नहीं हमने सुना अपनी ज़िंदगी में कि किसी ने अस्पताल में अटैक किया हो, कभी ज़िंदगी में नहीं सुना। मदरसों में अटैक किया हो, कि ऐसी जगह पर अटैक किया हो, ये तो माफ़ी दे ही नहीं रही। और ये इनको खुदा की कसम मारना स्वाब है, इसराइल को हम कभी भी तस्लीम कर सकते ही नहीं। हमें तो ये इजाज़त है, हमें छोड़े इधर, तो हमारी लेडी चली जाए, यकीन करें, मजबूर है। जब खबरें देखते हैं, बच्चों की लाशें देखते हैं तो तड़पते हैं। लोग खुदकशी इसलिए नहीं कर सकते कि हराम है करना, इधर लोग खुदकशी कर लें। जो जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, और इसका कोई हल गवर्नमेंट हमारी को नहीं। आज से 1000 साल पहले चंगेज खान ने एक मेथड लेके आया था जंग का, कि खौफ इतना फैला दो कि अगला बंदा आपके सामने खड़ा ही ना हो सके। मगर इधर खौफ है ही नहीं है। इधर हमारी फौज माशाल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से हमारी फौज भी बड़ी बहादुर है, तो वो भी कुछ करें ना, वो आवाम को एक दफ़ा करें, आओ चलो हमारे साथ, किसी ने पूछना ही नहीं, सब जाने को तैयार है, बूढ़े बच्चे बाबे औरतें दिखकर जाने को तैयार। इतना जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन में कि बयान नहीं, मैंने तो खबरें देखनी छोड़ दी हैं, मैं खबरें देखता ही नहीं, इतना जुल्म हो रहा है। अल्लाह ताला मदद करेगा इंशाल्लाह। हर मस्जिद में, इस जुमे मैंने देखा, हर मस्जिद में खुतबे में मौलवी साहब ने खुतबा नहीं किया, यही बताया है कि इनके लिए हम मजबूर हैं, दुआ करें। हम दुआ कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर, बैतुल मुक़द्दस से हमारा क्या रिश्ता है? हमारा किबला अव्वल है मुसलमानों का, तो इससे बड़ा और हमारा रिश्ता क्या हो सकता है उससे? क्या वजह है कि वो फीलिंग नहीं आती, वो इमोशन कैसा हो सकता है कि अगर किसी आम आज के यंग नौजवान से, जनरेशन से पूछा जाए तो उसको वो चीज़ फील क्यों नहीं आती? सर फील ये नहीं आती कि एक दफ़ा मैं देख रहा था अल्लाह जनसिब के तारक अजीज़ को, तारक अजीज़ शो चलता था ना, तो लोग एतराज़ करते थे, तुम हर प्रोग्राम में कहते हो कि पाकिस्तान किस तारीख को आज़ाद हुआ है, ये तो सबको पता है। तो उसने कहा यार आपको पता है ना, ये बच्चों को तो नहीं पता। जब हम बताएंगे ही नहीं, हमारे उलमा या हम वालिदैन हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो उनको क्या पता, क्या उनको तो ये भी नहीं पता लगेगा हमारे आबाओ अजदाद क्या थे, हमारा शहर में क्या चीज़ है क्या नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे उलमा की, हमारे सियासतदानों की, लेकिन वो चीज़ें इस मुल्क से ख़त्म होती जा रही हैं, वो नहीं है, इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं जा रहा, यहाँ ये किसी और के मिशन पे काम हो रहा है। कहने को तो यहूदी एक अहले किताब है, ठीक है ना, तौरात पे, ज़बूर पे ईमान रखते हैं, लेकिन क्या वजह होगी उनके अंदर एक शैतानियत, एक हैवानियत? बात यह है, अल्लाह पाक ने कुरान में ये कहा है, कोई भी तुम किताब उठा लो, अल्लाह पाक ने कुरान को कहा है कि इस किताब पे जो अमल करेगा, कौमों को कहा है, मुसलमान का नहीं कहा, वो कौमें कामयाब हो जाएंगी, ठीक है, जो इस किताब पे अमल नहीं करेगा वो बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने तो कहा है बनी इसराइल को, जितना अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में क्या कहते हैं उसे कहा है कि अब मेरी मतलब कि वो गुड बुक से, जिसे कहते हैं ना कि ख़त्म हो गया ताल्लुक। अब ये देखे ना, अब गैर मुस्लिम है, वो भी अल्लाह की मखलूक है, किसी और की तो नहीं है, लेकिन अब रह की इंसानियत, ना वो झूठ बोलते हैं, ना वो मिलावट करते हैं, ना वो ज़मीनों पे कब्जा करते हैं,
ना वो ये सियासत में खरीदो फरोख्त करते हैं। अब जो सारे ही दुनिया के गुनाह हैं, जानी, शराबी, जो भी चीज़ है वो तो हमारे अंदर है। तो ये बताएं ना, ये मुआशरे का क्या बनेगा जब मैं अपने इस 5 फुट के कद को सही नहीं करूंगा, तो मैं कैसे आप पे, उस पे, अगले पे कैसे तनकीद करूंगा? मकसद है हम मुसलमानी से पीछे हट गए। हमने अपने बच्चों को मदरसों मस्जिदों में जाना बुला दिया, हमने इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया है। पहले हम भी पढ़ते थे, टाट के स्कूल में जाते थे। फिर एक माफिया छा गया प्राइवेट स्कूलों का। अब हर बंदा प्राइवेट स्कूल में। किसी बच्चे को कलमा तक नहीं आता, गुस्ल के फ़राइज़ का नहीं पता। तो फिर अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह ने सारे काम नहीं करने, अल्लाह ने हमको एक रास्ता दिखा दिया, ये सड़क है ना, बना दी है, अब हमने देख के चलना है, इसमें कहीं गटर तो नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, सीखना है, हमने दीन पे चलना है। जब हम और लोगों के पैरोकार बनेंगे तो फिर ऐसे ही बर्बादी होगी, मरेंगे सब। जुल्म किस पे हो रहा है? मुसलमानों पे। किस चीज़ के मुसलमान है? नाम के मुसलमान है, काम के नहीं है। मेरा भाई यहाँ मर रहा है, तड़फ रहा है मुसलमान, लेकिन मैं अयाशी कर रहा हूँ, वो मरता है तो मरता रहे, मैं एक रोटी दे सकता हूँ उसे। ये ऐसे नहीं काम चलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।